I, Dr. Purnima Gupta, Assistant Professor Mains, takes the pleasure to welcome you all my freshers to the 2024 orientation program at Mains and be a part of amazing Mains family. एक खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे संस्थापक अध्यक्ष, चेयरमैन, ट्रस्टीज, गुरुजन व छात्रों को प्रणाम करते हैं। फ्रेशर्स ओरिएंटेशन का सुंदर सा आरंभ करते हैं और इन यादों को हम अपने दिल के आईने में हमेशा के लिए कैद करते हैं। With these lines, I wholeheartedly welcome our founder, chairman and chief advisor mates, Chancellor Maharaja Agrasen University, Baddi, Dr. Nand Kishore Garg, Chairman Mates Shri Vineet Kumar Lohia ji, Executive Chairman Shri S.P. Agarwal ji, Vice Chairman Shri Jagdish Mittal ji, General Secretary Shri T.R. Garg ji, Treasurer Mate Shri Anand Gupta ji, our Secretary Shri Rajneesh Gupta ji, our respectable Shri Gyanendra Srivastav ji, Shri S.K. Garg ji, our respectable Kakkar Sir, Sachin Gupta ji, DG Mate Professor J.V. Desai ji, Ratan Lal Garg ji, our Director Mains Professor Dr. Rajni Malhotra Timra ma'am, Director Mate Professor Dr. Neelam Sharma ma'am, heads of all the departments of Mains, Mate, our Dean Sir Mate Professor S.S. Deswal, all the members of our trust and management and the members of the society, my dear colleagues and dear students. Since you are about to embark on a journey that is filled with new opportunities, challenges, milestones, achievements and experiences that will shape who you are and who you all will become. As freshers, this is surely a special day for you all. This day is a day of nostalgia for many. It is a day with mixed feelings of happiness, curiosity and excitement. But do not worry. We all are here as a mentor for you, to guide you and to make your path memorable, and this is going to be the best roller coaster ride of your journey that will be full of fun, knowledge, growth and ultimate success. In recognition of this profound significance, we cordially invite all the dignitaries to partake in the ceremonial lighting of the lamp as we invoke the presence and blessings of the goddess Ma Saraswati. Shubham. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. I salute the Supreme who is the light in the lamp that brings auspiciousness, prosperity, good health, abundance of wealth and the destruction of intellect's enemy. Let's pray to Goddess Ma Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom. With positive energy, and we sincerely believe that the blessings of Ma Saraswati have bestowed their grace upon the program. We would like to apprise you that Maharaja Agrasen Technical Education Society has its own prestigious Kulgeet. The Kulgeet of our college represents pride, excellence, achievements and success for a brighter future of our society. It's my honor and privilege to present the mesmerizing Kulgeet before you all.
All the students are requested to please stand up to watch the school gate. जग प्रबंधन सफल योजना सघन प्रशिक्षण योग साधना प्रयोगशाला कक्षा परिसर बने शोध संस्थान देश है प्रथम रखे यह ध्यान अग्रणी शिक्षा का संस्थान तकनीकी वाणिज्य कुशलता कौशल अभियांत्रिकी दक्षता चिकित्सा विधि पत्रकारिता कला ज्ञान विज्ञान सिद्धता बहुविध शिक्षा से हम बनते जागृत प्रज्ञावान देश है प्रथम रखे यह ध्यान अग्रणी शिक्षा का संस्थान पाठ्यक्रम के पाठ पठन से सतत परीक्षण मूल्यांकन से कार्य सफल होते उद्यम से लाभों केवल मनोरथों से देश है प्रथम रखे यह ध्यान अग्रणी शिक्षा का संस्थान देश है प्रथम रखे यह ध्यान अग्रणी शिक्षा का संस्थान What a mesmerizing Gulgi for honoring us with their presence. I would like to request our Director Mains, Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, to kindly felicitate our founder chairman, Sir Dr. Nand Kishore Garg, as a token of our gratitude. I will request Director Ma'am, Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra and other. Okay, I will request our Chairman Sir, Dr. Nand Kishore Garg Sir, to please felicitate our respectable Kakkar Sir as a token of our gratitude and respect. Thank you so much, sir, for coming and blessing us today. बैठ रिकॉर्डिंग हो रही, थोड़ा सा बैठ जाओ फटाफट। आगे क्यों ये लोग सीट छोड़ के, समझ नहीं आ रहा है। ये जा तो रही है, बोल देगी। खुशी खुशी सबको बोल, दो स्टेज आगे हो गए। Now I request Director Mains, Director Mate, ma'am, to please felicitate Ratan Lal Sir as a mark of our respect and gratitude. सारे 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 दो अब दिमाग आगे आगे सबके नखरे झेलते रहे, हो गया। Us, and we are honored to request ma'am to deliver a welcome address to the August gathering. Good morning to all. Good morning. So very good morning to Shri Nand Kishore Garg ji, Founder Chairman, Maharaja Agrasen Technical Education Society and Chancellor, Maharaja Agrasen University, Baddi, under whose able guidance NAC A++ has been obtained by mains, and all the department of mains are progressing rapidly and has become the first choice of the students in the various domains. I also welcome all the respected trustee members, our Gurujan, my colleagues, and special guest Kakkar sir, who is the founder director of Maharaja Agrasen Institute of Management Studies. The journey traversed by mains under the direction of inspiring Shri Nand Kishore Garg ji has been remarkable.
MEMS started with one course and 120 students, and now it is nestling and nurturing more than 3,000 students. Now, we have 7 undergraduate and 1 postgraduate course, and total intake has reached 1,230 students. आरंभ एक नए जीवन का बुनियाद जिसकी समय निष्ठा एवं समर्पण है। परिश्रम जब आपका प्रतिफलित होगा, गर्वित तब आपका परिवार एवं संस्थान होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस संस्थान में स्वागत है। I congratulate you for taking the right decision in selecting the institution. And why I am saying again and again that this is the best institution? This institution has been accredited by NAC, that is A++, और पूरी दिल्ली में कुछ ही ऐसे संस्थान हैं जो कि NAC A++ हैं। This institute has good infrastructure, committed faculty, supportive environment, plethora of activities, enough opportunity for students and good placements. This is reflected by the fact that not only students of Delhi opted MEMS, but the student of UP, Bihar, Haryana, Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Jharkhand has given preference to this college. Moreover, this batch is unique in various ways. It is diversified batch. And interestingly, more female students have taken admission in many courses. In economics, only 9 male students has taken the admission. In BJMC, 34 male students has taken the admission. Rest are the females. And LLB, 104 male students has taken because it is considered as that male dominant profession. But now the things has been changed. Only 104 students have taken admission in LLB, and in the LLM only 2 male students has taken the admission. So this is gender diversified batch and shows our commitment for the women empowerment and gender diversification. My dear students, here in MEMS, we are determined in overall development of the students. For this, we are organizing many co-curricular and extracurricular events that is created in this manner that each and every student can participate according to their interest, because we know that every student has its own capability, his or her own capability. So we are organizing various kind of activities. So according to your interest, according to your capability, you can participate and can excel in the various fields. Dear students, हमारे संस्थान में न केवल किताबी ज्ञान सिखाया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ आध्यात्मिकता पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। आप सब लोगों ने आज इसको एविडेंस किया है, विटनेस किया है कि हमने अपने शैक्षणिक जो सत्र है उसकी शुरुआत हमने हवन से की, और हमारे संस्थान में गीता क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। इस इवेंट में जिन छात्रों ने गीता कोर्स को कंप्लीट किया है उनको सर्टिफिकेट भी वितरित किए जाएंगे। तो हम आपके ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गीता क्लासेस में छात्र छात्राओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जब हम आपके लिए इतने डेडिकेटेड हैं, इतने हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो हमारी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ डिमांड्स हैं। फर्स्ट डिमांड इज that you will behave professionally and you will not indulge yourself in activities that can compel us to take strict action. You have to wear appropriate dress suited for professional courses you opted for. Next is be punctual and regular in attending classes. Dear students,
as you will be our brand ambassador, you are and you will be in future also our brand ambassador. So we will not be able to compromise in doing any activity or take any action that will enhance your future perspective. God bless you all. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for such a warm welcome. Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, affiliated with Guru Gobind Singh Indraprastha University, is an accredited NAAC A++ institution recognized by the UGC and the Bar Council of India. It offers undergraduate programs in various fields including business administration, commerce, law, computer applications, economics, journalism and mass communication. MAINS is known for its vibrant campus life with numerous student-run activities and societies like the Cultural Society, academic activities, committees and various department-specific clubs working tirelessly day and night to achieve the mission and vision of the esteemed institution. The institution emphasizes a blend of academic excellence, extracurricular engagement and holistic student development. So hold your breaths, relax and enjoy the MAINS journey through a short video. I hope our dignitaries and freshers have enjoyed immensely and taken a deep take of MAINS' various activities and achievements through this documentary. Further, we had the address by our chairman, Sir Shri Vineet Kumar Lohia ji, but he could not come due to some urgent assignment, though he has sent his blessings and good wishes for all of us and especially our youngsters who are embarking a new chapter of their lives. Get ready to be captivated as we present a truly rocking performance by Nirvana, the classical dance society of MAINS. शूलं भजेऽहं भजे
सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं दलानग्ननागं कृताधिदयागं गदारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम् Teachers and management together help any institution to achieve the heights of success. As we celebrate the incredible achievement of our students, it is a time to hear from some of our brightest stars who have excelled in their respective fields. Their journey at MAMES are a testament to the dedication, hard work and excellence that define our institution. I would like to invite the gold medalist from our institute to come and share their experiences. And for that, I would like to invite Khyati Jain from the Economics Department 2021 batch, who will share her journey and how MAMES has shaped her path to success. Thank you, ma'am, for calling me here. Hello, everyone. I am Khyati Jain and I graduated from MAMES in BA in Economics Honours, where I had the honor of receiving the gold medal. I was the overall rank holder in GGS IQ in Economics Honours. So, apart from this, I am here to share my experience with you all in MAMES. My journey in MAMES was very thrilling and it was a roller coaster ride for me. Vibes here from the first day was full of community and growth. If I talk about my journey in MAMES, it was pretty good here. MAMES gave me a lot. It was like a second home to me. In fact, if I talk about faculty, it was pretty good and a very supportive faculty we have here. Our Honorable HOD Sir, Dr. Gaurav Agarwal, he was the one who always provided us new opportunities to explore our talent and to grow personally. Other professors were also the ones whom we can approach anytime and were also very supportive throughout the journey. And how can I forget my late night study sessions with my friends Sanjana and Vidhi? They were the college survival kit for me. Without them, I could not survive the college. They were the integral part of my college life. Thank you guys. And talking about events and fest, then MAMES is best in all. बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे फेस्ट होते हैं. आई पर्सनली एन्जॉयड माई कॉलेज लाइफ टू द फुलेस्ट. सो बस मैं फ्रेशर से यही कहना चाहूँगी, गाइज प्लीज़ एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ टू द फुलेस्ट एंड ऑल्सो स्टे फोकस, स्टे करेजियस एंड अचीव योर गोल्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू. Thank you so much, Khyati, for giving some tips to my students. We have our alumni from the Commerce Department, Ms. Sejal Bansal, 2020 to 2023 batch, and she has been placed as Operation Association Travel Clan. So I request her to please come on stage. Hi, good afternoon everyone. So my name is Sejal and I have been placed in Craftland with a package of 7 lakhs. So it's an honor to be back in Maharaja Aghasen Institute of Management Studies, a place that holds a lot of fond memories and has been a cornerstone in shaping who I am today. To the faculty, I thank you for inviting me to speak today, and to the students, welcome to what I am sure is going to be the most transformative experience of your lives. It feels like
I was sitting next to you. I was sitting in the place where you all are sitting today, full of excitement, full of anticipation, and a bit of nervousness as well. So the lessons I've learned, both inside and outside the class, were valuable. The projects, the late night study sessions, the group discussions, and even the challenges. All these experiences were very crucial in shaping my professional path. I realized that management is not just about understanding the theories and frameworks, but it's more about learning how to adapt, how to lead, and how to think critically in a rapidly changing world. One of the greatest advice that I would like to offer is to always value the relationships you will build here. Your peers will be your collaborators, your competitors, and your greatest allies as you progress in your career. The friendships you form here and the networks built will last far beyond the time in this institute. Stay connected, support each other, and always stay open to learning from those who are around you. I encourage you to embrace every opportunity that MAMES give you. Join clubs, participate in events, take leadership roles, and never shy away from challenges. Each of these experiences will add a unique dimension to your learning and growth. Remember, growth often happens outside your comfort zone. As you embark on the journey, remember that success is not just about grades and accolades. It's about the person you become in the process. Be curious, be resilient, and most importantly, be yourself. The knowledge and skills you acquire in MAMES are the tools, but the character and integrity will define how you use them. In conclusion, I want to remind you that you are now a part of a legacy of excellence, leadership, and innovation. You have the power to shape your future, and MAMES, this institute is here to support you at every step on your way. I am excited to see all the incredible things you will achieve, and I'm confident that you will make us all proud. Thank you, and once again, I welcome all the young minds to Maharaja Agrasen Institute of Management Studies. Thank you so much, Sejal, for your valuable insights to our students. Now, moving further, it is always inspiring to hear from those who have to embark their journey at MAMES. Our freshers bring with them a fresh perspective, new energy, and a sense of excitement as they begin to make their mark on our institution. Let us welcome some of our talented freshers to share their valuable experiences, challenges, and inspirations as they step into this new chapter of their life at MAMES. So I will welcome one of our freshers, Kunal Singh Rajawat, BCA, who got 5th rank in the Common Entrance Test. Good morning, everyone. My name is Kunal Singh Rajawat, and I'm proud to share that I secured the 5th rank in the CET for BCA. MAMES is a well-established institution with a strong reputation, and its NAC A++ accreditation speaks volume about its quality of education. The college offers a vibrant campus life with various clubs and activities, guided by experienced faculty. Additionally, MAMES is one of the top colleges under IPU University, known for its excellent placement opportunities. I believe that this college provides the perfect environment for academic growth and career development. Thank you. Thank you so much, Kunal. We have one more gold medalist from the journalism department, Jaya. She'll be reaching here in another 5 to 10 minutes. So we'll have her testimonial later, and let us move ahead. The fragrance of the flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. With these words, it's my privilege and honor to introduce our founder, chairman, and chief advisor mates, Dr. Nand Kishore Garg sir. Sir is an eminent figure amongst the masses who, with his humanitarian attribute, has always contributed selflessly, not only in building the Maharaja Agrasen Technical Education Society, but has also been contributing a great deal in bringing together various driving forces who move the nation for a brighter tomorrow. Sir is our significant source of inspiration and motivation for achieving all our aims and goals at MAMES. We invite you, sir.
नमस्कार। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ 2003 में जिसको प्रारंभ किया, डॉक्टर N.K. कक्कड़ जी हमारे फाउंडर डायरेक्टर हमारे बीच में हैं। N.K. कक्कड़ जी दिल्ली में, देश में, शिक्षा जगत में एक जाना माना नाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित रहे कई बार और आज भी एक्टिव हैं। कई कॉलेजों में डायरेक्टर रहे, मैनेजमेंट के, हिंदू कॉलेज सोनीपत में और कई जगह। ऐसे व्यक्ति के कहने से ही हमने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया। जोरदार तालियां। दो 2003 में जो यात्रा प्रारंभ हुई, मेट के लगभग 4 साल बाद पहला बैच मेट का जब पासिंग आउट था उस समय प्रारंभ हुआ और बहुत थोड़े समय में इस यात्रा में हमने अपनी सफलताएं प्राप्त की। जैसा अभी बताया था, A++ दिल्ली में कुल 10 ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की 6-7 कॉलेजेस हैं और IP यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेजेस जिनको A++ मिला है। अब जो 100 साल पुराने, 125 साल पुराना हिंदू कॉलेज हो, श्री राम कॉलेज हो, लेडी श्री राम कॉलेज हो, उन कॉलेजों के सामने हम बिल्कुल बच्चे हैं उनके सामने। परंतु उस समय एक टैगलाइन लोग बच्चों ने चलाई थी, फ्यूचर का श्री राम कॉलेज महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट बनने वाला है, ऐसा आम लोगों में धारणा रही है और उसको हमने प्राप्त करने की ओर तेज़ी से बढ़े। गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना करने में मुझे भी कुछ योगदान करने का अवसर मिला। दिल्ली के शिक्षा जगत में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का मैं 1990 में चेयरमैन रहा। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जिसके फॉर्मर प्रिंसिपल और हमारे आज भी इस पूरी एक्टिविटी में साथ हैं DG प्रोफेसर S.K. गर्ग जी हमारे बीच में हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रहा और उसके बाद 98 में हमने ये यात्रा प्रारंभ की। 25 वर्ष हमने पूरे किए हैं। सिल्वर जुबली हमारा वर्ष अब समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने महाराजा अग्रसेन ग्लोबल स्कूल शुरू किया जो अभी रिकग्नाइज भी नहीं हुआ, परंतु इस बार ओलंपियाड में मैथमेटिक्स और शायद फिजिक्स में हमारे 2 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किया और उनको अवार्ड मिला। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो देश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसका सर्विंग राष्ट्रपति ने जिसका उद्घाटन किया था 2013 में, और आज वो अपनी रैंकिंग में हिमाचल में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपना एक विशेष स्थान है। अब हम उसी के अंदर, कल प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण सुना होगा, एक बहुत बड़ा टारगेट उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में हम सबके सामने रखा है। देश के लगभग 30,000 स्टूडेंट MBBS की पढ़ाई करने के लिए उन देशों में जा रहे हैं जो देश हमसे पिछड़े हुए हैं, परंतु वहाँ सीटें ज़्यादा हैं। चाइना में जा रहे हैं, यूक्रेन में कितने थे आपने स्वयं देखा होगा। बांग्लादेश के अंदर लगभग 2-2.5 हज़ार विद्यार्थी हैं जो बांग्लादेश में MBBS करने गए हुए हैं। क्या शो करता है ये कि MBBS की लिए 20-22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। 3-4 महीने उन बच्चों को परेशान करने के लिए इस देश को बढ़ते हुए जो लोग नहीं देखना चाहते, जो लोग इस देश की प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जब उनको अवसर मिला तो कुछ नहीं किया। अगर 370-72 मेडिकल कॉलेज थे 2014 तक, जो आज 700 को क्रॉस कर गए हैं। 35,000 सीटें थी तो जिनको बढ़ के 75,000 हो चुकी हों, 1 लाख हो गई हों। मैं भी एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया था 1990 में अग्रोहा, हिसार, हरियाणा में, जिसके जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे बीच जगदीश मित्तल जी बैठे हैं। मैं उसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था। 1990 में शुरू किया हुआ
ऐसी सरकारें आई कि हमें 50 सीट से 51वीं सीट नहीं दी। 280 एकड़ में कॉलेज हो, हरियाणा सरकार बराबर की पार्टनर हो, कोई हमने कोटा जो मैनेजमेंट कोटा होता वो नहीं लिया हो, उस कॉलेज को भी यदि मोदी जी ना आते तो 100 सीटें वहाँ ना हो पाती। जबकि टॉपर उस कॉलेज के हैं। रोहतक पीजीआई के सामने मुकाबला करते हुए हमारे स्टूडेंट्स मेरिट के अंदर हरियाणा में टॉपर हैं, परंतु वहाँ सीटें नहीं बढ़ने दी। क्योंकि इस देश में सीटें बढ़ जाएं, सबको पढ़ाई मिल जाए, सबको एजुकेशन हो जाए, तो फिर कुछ लोगों की दाल रोटी बंद होती। कुछ लोग जो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ के रिश्वत खाकर बैठे हुए हैं, गुर्रा रहे हैं, जिनके बारे में कल भी इशारा की, ये यही एक देश है जहाँ महिमा मंडन करप्ट लोगों का होता हो। जमानत पर छूटे हुए लोग, सजा याफ्ता लोग भी राजनीति में बहुत दंदनाते घूमते हैं, दूसरों को प्रीच करते हैं। उन लोगों को एक इशारा था कि आने वाले 5 साल में इस देश के अंदर 75,000 नई मेडिकल की सीटें क्रिएट की जाएंगी। अभी 1 लाख हैं, कुल 35,000 थी, और 5 साल में 75,000 बहुत बड़ा टारगेट है। एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 700-800 करोड़ रुपए लगता है। मिनिमम 500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए साल का फाइनेंशियल बर्डन कह दें या खर्चा चाहिए। परंतु इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के उस प्राचीर से ये घोषणा की है जिस पर बोलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो आज़ादी दे ही दी थी उन्होंने, जिनको देश का पहला इंटरिम प्रधानमंत्री भी बने थे। कितने लोगों को पता है? शायद एक को भी नहीं पता। इंटरिम गवर्नमेंट सिंगापुर में बनी थी, जिसकी अपनी करेंसी थी, अपनी सब कुछ थी, उसको 18 देशों ने मान्यता भी दी थी, परंतु किसी हमारे को इतिहास में उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया। एक ही व्यक्ति है जिसका जन्मदिन सब मनाते हैं हम। इस कॉलेज में भी हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और एक बार हमने लगभग 1000 विद्यार्थियों ने, हमारे फैकल्टी ने ब्लड डोनेट करके एक रिकॉर्ड बनाया था। उस व्यक्ति का आज भी कोई मृत्यु का दिवस नहीं मनाता, क्योंकि ये होते हैं अमर अजर, जिसको हनुमान चालीसा में भी जब आशीर्वाद दिया था माँ जानकी ने हनुमान जी को, अजर अमर सुत हो। अजर माने जो बूढ़ा ना हो, अमर वो जिसकी मृत्यु ना हो। ऐसे लोगों को बुलाकर ऐसे लोगों को हमें बताया गया जिन्होंने देश को 15 अगस्त को आज़ादी दिलाने से पहले इस देश के 2 टुकड़े किए, इस देश की 2 भुजाएं काटी, जिसके कारण से आज भी 30-35% वहाँ जो सनातन परंपरा के लोग पाकिस्तान बांग्लादेश में थे, आज वो घटकर मात्र 2% पाकिस्तान में और शायद 12% बांग्लादेश में। कहाँ गए बाकी लोग? और यहाँ कितने थे और कितने हो गए वो लोग जिन्होंने देश के टुकड़े कराए थे? ये बात थोड़ी थोड़ी आप लोग चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, फिर से वो परिस्थिति पैदा ना हो। इस देश को तोड़ने की शक्तियाँ पहले से ज़्यादा सक्रिय हैं। किसी को पसंद नहीं है कि यहाँ से गरीबी शून्य हो जाए, किसी को पसंद नहीं है कि यहाँ सबको शिक्षा मिल जाए, सबको स्वास्थ्य मिल जाए, 70 साल से ऊपर वालों के लोगों को सबको अपने आप सरकारी खर्च पर इलाज मिले। ये घोषणा नहीं लागू होने वाली, शायद आज शाम को कैबिनेट की मीटिंग में होने वाली। इतना बड़ा काम, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, 40 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का जाल बिछड़ा हो, मेट्रो रेलवे छा गई हो, बुलेट ट्रेन 2025 तक चल जाएगी, सारे एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो जाए, सारे सी पोर्ट हो जाए। किसने सोचा था? परंतु हमारे यहाँ पोटेंशियल है, हम सब में क्षमताएं हैं। हमारे लोग विश्व की 500 बड़ी फॉर्च्यून कंपनी, 500 फॉर्च्यून कंपनी में 100 से ज़्यादा में सीईओ हैं। किसी की सिफारिश में नहीं, किसी कोटे से नहीं, अमेरिका में जाकर या यूरोप में जाके वो सीईओ बने हैं। हमारे देश का व्यक्ति उस प्रधानमंत्री बना इंग्लैंड का जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया था, किसी कृपा से नहीं बना था,
और आज भी लोग याद करेंगे 10, 20, 50 साल बाद भी कि ऋषि सोनक था कोई, जिसने उस देश को आर्थिक डिजास्टर से बचाया। कोरोना काल के कारण जब प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं था, वो व्यक्ति बना और उसको सुधार करके दिखाया। आज अमेरिका के चुनाव में 32 करोड़ लोगों में केवल 32 लाख भारतीय हैं, परंतु निर्णायक स्थिति में हैं। राष्ट्रपति कोई सा बनो, ट्रंप का जो मेट है उपराष्ट्रपति, वो भारतीय मूल की हमारी एक बेटी का पति है, और दूसरे सामने की तरफ तो सीधी सीधी बेटी हमारी है। कैसे हुआ ये? क्योंकि हमारी क्षमताओं का हमने फ़ायदा नहीं उठाया। हमने IITN बना के अमेरिका भेजे, हमने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर एक बच्चे पे 2-2, 4-4 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका को दिया, और अमेरिका में जाके आज उनका पूरा का पूरा सेटअप, पूरी उनकी मेडिकल साइंस, पूरा उनका नासा, पूरा अंतरिक्ष विज्ञान सब हमारे लोगों के हाथ में है। तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आप बताएं, क्यों करने वाले तो अब आप हैं ना। हमारे यहाँ लगभग ये इस वर्ष 1200 कुछ लोग बच्चे हमारे मेम्स में आए हैं, और 1600-1700 हमारे बेट में आए हैं, और लगभग 1000 हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो ये सब हायर एजुकेशन के लिए हम लोग लगभग 4000 विद्यार्थियों को देश का एक अच्छा सक्षम नागरिक बनाकर उसको विश्व नागरिक बनाएंगे, परंतु जो भारत से जुड़ा रहे, जो वसुदेव कुटुंबकम में तो विश्वास करता हो, परंतु इस धरती से जुड़ा हो, जो अपने ऊपर गर्व कर सके कि हम किन की संतान हैं। ऋषि कणाद कौन थे? आप पढ़ेंगे तो एक आध बोर्ड लगा मिलेगा, नहीं तो सीखें। हमारे यहाँ आर्यभट्ट कौन था? ब्लॉकों के नाम रखें तो कुछ सोच समझ के रखें, तो आपको पता चलेगा कि आर्यभट्ट कौन थे, ब्रह्मगुप्त कौन थे, चाणक्य कौन थे, CV रमन कौन थे। ये तो थोड़ा पता होगा, बाकी को पता होना चाहिए। आज आचार्य जी ने बताया था ना, पहला श्लोक बोल के, आइंस्टीन वो व्यक्ति था जिसने पहले अध्ययन किया हमारे वेदों का। जर्मन में जाके हमारे वेदों के टुकड़े टुकड़े गए थे, जर्मन के लोगों ने उसको अध्ययन किया, क्योंकि जर्मन और संस्कृत काफ़ी मिलती जुलती भाषाएं हैं। उन लोगों ने उसको समझा बुझा, और उसके कारण से इतने ज़्यादा वहाँ पर रिसर्च हुआ कि आज जो भी कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में है उसका कारण हम आप हैं। भारत के अर्थशास्त्र के ऊपर जितने नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो आएंगे। हमारे डॉक्टर सिहाग हार्वर्ड में पढ़ाते पढ़ाते 40 साल हो चुके, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ पढ़े थे और उनके साथ नौकरी भी की थी। उन्होंने सिद्ध किया वेस्टर्न वर्ल्ड में कि जितने नोबेल लॉरेट हुए हैं अर्थशास्त्र में, वो सारे के सारे जो हमारे चाणक्य लिख के गया, जो कौटिल्य लिख के गया, उसको केवल उसने एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर दिखाने से, उसको एक्सप्लेन करने से वो सारे नोबेल पुरस्कार विजेता बने। तो आप में से क्यों नहीं बन सकते? अभी ख्याति बच्ची आई थी ना, इको ऑनर्स की टॉपर है। ऐसे बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन दें, थोड़ा शाबाशी दें। हम भी कोशिश करें, डायरेक्टर भी आगे बढ़ेंगे बच्चे। हमारे यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी ड्रोन हमारे एक बच्चे ने फर्स्ट ईयर के ने बनाया था, दिल्ली पुलिस के अंदर खरीद के उसको यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चों ने जो इनोवेशन की है, हर बार जो हैकाथॉन में प्राइज़ लेके आए हैं, 1-1 लाख रुपए का पूरे देश का IITN से compete करने के बाद, तो आज वो सब यहाँ हमारे साथ होंगे। हमने उनके लिए बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी जो हमें बेस्ट अवेलेबल है, अभी प्रोफेसर देसाई बैठे होंगे, अभी बेंगलोर से आए हैं, खुद IIT बॉम्बे के एलुमनी हैं, और कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा साइंस में जो नई चीज़ें आई, मशीन लर्निंग में आपको एक्सपोजर मिलेगा। सीखने वाले मेम्स वाले भी आके जब उनको कोई क्लास लें आके अटेंड करिए। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा सीखने के लिए कोई रोक नहीं। हम आप लोगों को सब फैसिलिटी देंगे। आप लोगों को नेशनल कैडेट कोर, NSS, 10 गाँवों का संपूर्ण विकास का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए 10 गांव हमने अडॉप्ट किए हैं। हम भी कुछ देना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उस भावना को डेवलप करने के लिए डॉक्टर कक्कड़ जी ने एक दिन शुरू किया हुआ था साल में,
आज भी वो जारी है। इसलिए हम आपके लिए पूरी चिंता करेंगे। कल मैंने घोषणा की थी परसों कि जो बच्चे घर में किसी कारण से सुबह नाश्ता करके नहीं आ पाते, जल्दबाजी में दूर से आते हैं, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, ऐसे बच्चे अपने अपने जो टीचर इंचार्ज को या उनका जो ग्रुप इंचार्ज होगा उस तक अपना नाम लिखवा दें। हम कोशिश करेंगे ऐसे जो 50 से 200 बच्चे ऐसे निकल सकते दोनों इंस्टीट्यूट में, उनको यहाँ 8:30 पौने 9 पहुँचते ही उनको ब्रेकफास्ट मिल जाए, ताकि उनको आराम से फिर बिना चिंता के 2-3 घंटे पढ़ने में, क्योंकि बीच में लंच आने में फिर समय लगता है। आप लोग डेडिकेटेड होकर पूरी निष्ठा से, पूरे कर्तव्य भावना से यहाँ पढ़ें। जिसको कोई भी दिक्कत हो वो आप हम सब से मिल सकते हैं। TR गर्ग साहब बैठे हैं, आनंद जी बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं, बाकी हमारे साथी, और ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जैसे आज उनका अभी हुआ नहीं भाषण, कोई समय नहीं था, फॉर्मर डायरेक्टर एजुकेशन है दिल्ली के, और लगभग 15-16 साल रिटायरमेंट के बाद बिना किसी वेतन के, बिना किसी लोभ लालच कर, बिना किसी शान शौकत के वो यहाँ आते, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आप लोगों के फ़ायदा उठाइए। सारे टीचर आपके लिए उपलब्ध हैं, सारी फैकल्टी उपलब्ध हैं। हमारी कोशिश आने वाले जल्दी ही रोज़ाना सवेरे जिनका भी जन्मदिन हुआ उनको हम कम से कम यज्ञ में बैठे आशीर्वाद दें। ये रिचुअल नज़र आ सकते हैं कुछ लोगों को, ये भी लग सकता है क्या है। कोशिश की आचार्य जी ने बताने की, पूरा बताने में समय लगता है, समय किसी पर है नहीं, इसलिए हमने सोचा धीरे धीरे इसकी आदत बना लें। और भारतीय ज्ञान परंपरा को भी एजुकेशन का पार्ट है न्यू एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए भी मेरे दोनों डायरेक्टर कोशिश करें हफ्ते में 1-1 दिन 1-1 घंटा हमारे ऐसे लोगों को हम बुला देंगे स्पेशल, जैसे आचार्य जी हैं, कुछ हम क्लासेस लेंगे, कुछ कक्कड़ साहब आ सकते हैं क्योंकि इनको पैशन है पढ़ाने। आज भी कह रहे थे मैं हफ्ते में 2 दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जाता हूँ। क्यों? खाली बैठे घर में क्यों टाइम को खराब करें? जो जीवन में सीखा है उसको आगे देना, गुरु का काम यही है, हमेशा ज्ञान का प्रकाश दूसरों को देना। एस.के. गर्ग साहब किस लिए आते हैं? इस टाइप के बहुत लोग हैं, इनके मित्र, हमारे मित्र जो यहाँ आने को तैयार हैं, जो आपसे मिलकर आपको कुछ न कुछ देंगे और आपको आशीर्वाद तो इतना देंगे कि आप अपने जीवन में एक अच्छे सच्चे भारतीय बनकर अपने माता पिता के एक अच्छे लड़के लड़कियाँ जैसे पुत्रियाँ हैं। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस बार इनटेक हमारी बच्चियों का ज़्यादा है, हमारी बेटियों का ज़्यादा है कई फील्ड में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल पहले सोचा था कि हर फील्ड में मेरी बेटियां आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ रही हैं, और उन बेटियों को बहुत बहुत बधाई। अपने आपके 2 घरों की जिम्मेवारी होगी, जिस घर में आप पैदा हुई और जिस घर में आप शादी के बाद जाएंगी, इसलिए आपके पास डबल जिम्मेवारी रहेगी। एक अच्छी गार्गी कौन थी जिन्होंने नाम से कॉलेज चलता है जिसका नामकरण हमने हमारी सरकार, पता ही नहीं लोगों को। मैत्री कौन थी? फैसला कराने वाले कौन थी? जब बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ 2-3 दिन तक, एक तरफ पति थे, दूसरी तरफ शंकराचार्य थे, कौन जीता इसका फैसला किसने किया? तो मेरी एक बहन जी थी, मेरी माता जी थी, मेरे जो भी आप कहें कि इस शास्त्रार्थ में ये विजयी हुआ है। तो बहुत मातृशक्ति की जो पावर है, शक्ति है, और पढ़ाने में तो मेरी अब 80% हो गई। इसलिए जितने भी टीचर हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो अपने जीवन से इतना ज़्यादा प्रभावित करें आने वाली पीढ़ियों को कि वो बहुत ही अच्छे भारतीय बने, अच्छे बेटा बेटी बने, अच्छे बहू दामाद जो भी, क्योंकि आगे आगे कुछ रिश्ते तो गायब होने वाले हैं। जब बच्चे 1-1 2-2 हो जाएंगे घरों में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। एक तरफ 12 बच्चों से मुकाबला और दूसरे वो 1 या 2 बच्चे वाले, उनमें से भी 40% शायद शादी करने को तैयार नहीं है। ऐसी भयानक परिस्थिति में आपके सामने और मेरे जैसे के सामने, जिन्हें 50-55 साल के बाद लगता है कि हमारी सारी मेहनत के बावजूद इस हिंदुस्तान को संभालने के लिए जो नेक्स्ट पीढ़ी चाहिए। आज बेशक हमें अच्छा लगता है कि सबसे ज़्यादा यंग हमारे देश में, सबसे ज़्यादा 50 साल से नीचे की वर्किंग फोर्स हमारे पास है। 20 साल के बाद का अंदाज़ा लगाएं, जैसा जापान में है आज,
जापान में भी हमारे गए तो अच्छे बच्चे जापानी सीख गए। वहाँ पर बच्चे तो नहीं हैं, बूढ़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये स्थिति भारत में ना आ जाए, सब चीज़ों का ध्यान करना है, संपूर्ण विकास करना है और हॉलिस्टिक सोच लेके चलना है। केवल व्यक्तिगत सोचना नहीं, पूरी सृष्टि को सोचना, पर्यावरण की रक्षा करना, जल की रक्षा करना, किसका जिम्मेवारी? हमारी, आपकी। 20 साल पहले जब कक्कड़ साहब ने और हमने पेड़ लगाने शुरू किए थे, आज उसके 20 गुना हो गए। दिखता ही बाहर से आज कोई झांके ना, ये मेरी इच्छा थी। झांके तो उसे अंदर का बच्चा नज़र ना आए, इतने पेड़ पौधे और झाड़ियाँ होनी चाहिए। लगे हुए सब हमारे लोग, हमारे महामंत्री, हमारे कैशियर, हमारे उपाध्यक्ष, आप भी इस फैमिली के मेंबर हैं। आज आप महाराजा अग्रसेन परिवार के बेटे बेटियां हो गई हैं। इसका नाम ऊंचा हो, जितना दायित्व मेरा है उतना ही दायित्व आपका है, और इस दायित्व को हम सब मिलजुल कर पूरा करेंगे। जय हिंद। It is always a pleasure to listen to your insights and experiences. We have Jaya, the gold medalist from the journalism department with us. So I request, she is from 2021 to 2024 batch. I request Jaya to come and share her experiences at MEANS. Thank you so much, ma'am. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah। प्रस्तुत सभी अध्यापकों, गुरुओं और महानुभावों को मेरा प्रणाम। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जया है। मैं इसी कॉलेज से इसी साल मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं जानती हूँ आज आप सब क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस एक्सपीरियंस से, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। जब पहले दिन मैं कॉलेज आई थी तो मैं अनसर्टेन थी, मैं लॉस्ट थी। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। लेकिन आज अगर उस अनसर्टेनिटी से इस गोल्ड मेडलिस्ट तक का सफ़र मैं पूरा कर पाई हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस कॉलेज की वजह से है, इन गुरुओं की वजह से है, जिन्होंने अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बनाए रखा। अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में मैं बस 3 एडवाइस देना चाहूँगी आप लोगों को, जो मेरे लिए काम आई हैं, शायद आपके लिए भी काम आए। सबसे पहला एक्सपीरियंस यही है कि एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ये कहावत मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आई है। आपके दोस्त जब भी आपसे पूछे कि यार ये टॉपिक पढ़ा दो ना, तो आप उनको मना मत करिए, अपना ज्ञान अपने तक सीमित मत रखिए। आप जितना अपना ज्ञान बांटेंगे, जितना उनको पढ़ाएंगे, उतना ही आपको याद होगा, उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये काम आया। दूसरा, आप खुद पर विश्वास रखिए। आपकी काबिलियत का, आपके हुनर का आपसे ज़्यादा किसी को पता नहीं है। कोई आपको कुछ भी कहे कि आप ये काम तो कर ही नहीं सकते, आपके बस का तो ये है ही नहीं, पर आपको अपने अंदर ये विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आपको अपने अंदर विश्वास है तो कोई भी आपको उस मंजिल को पाने से नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। तीसरी बात, आप अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, शायद हम ये प्रथा पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन शायद कमी भी यही रह रही है। हमारे ट्रेडिशन में हमेशा से, आप चाहे गुरुकुल का अध्याय उठा के देख लें कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा गुरुओं का सम्मान होता था, उनको भगवान से ऊंचा दर्जा दिया जाता है। पर धीरे धीरे हम वो कहीं छोड़ते जा रहे हैं। तो वो ध्यान रखिए, अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, उनकी बात समझिए, मौज मस्ती ज़रूर कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी बात समझकर, उनकी बात ध्यान में रख कर आगे बढ़िए और आपको भी सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ हैं। बेस्ट विशेज़ एवरीवन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
धन्यवाद जया का, जिसने अपनी मेहनत के अलावा अपने कॉलेज, अपने गुरुओं का भी आभार प्रकट किया। आशा करती हूँ तुम सभी विद्यार्थी और आगे बढ़ो और तरक्की करो। हम सबका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। Moving ahead, we have certificate distribution for our religious society at Mains, and for that I request Ms. Neetu Agarwal to please come on stage for the certificate distribution. उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः पराक्रम विद्या एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवो सहायकः। अर्थात जहाँ परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और वीरता जैसे 6 गुण मौजूद होते हैं, वहाँ ईश्वर भी सहायता करता है। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए केवल प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें इन गुणों का भी विकास करना चाहिए। With these words, I, Neetu Agarwal, Assistant Professor from Department of Computer Applications and Convener of Wellness Club, would like to extend a warm welcome to all the freshers joining us in this orientation program. MAIMS has always focused on holistic development of students. We at MAIMS not only make good managers, lawyers and professionals, but we make good human beings. In pursuit of the same, a 1-year course on Bhagavad Gita was introduced on 23rd March 2023 and concluded on 12th March 2024. This course was organized by the Wellness Club, and 46 participants including teachers and students from MAIMS and MAID successfully completed it. I would like to congratulate each and every one of you for your commitment and hard work in completing this enlightening journey. Your dedication towards Bhagavad Gita and its teachings will undoubtedly enrich your lives and those around you. I would like to thank Sunil Sir, yoga instructor, for his invaluable guidance and support, who taught the Bhagavad Gita to the students and teachers daily. My heartfelt gratitude goes to the management and director ma'am for their continuous unwavering support during the course. Thank you sir, thank you ma'am. Your presence here today adds great significance to this occasion. I would also like to take a moment to express my thanks to the driving force of maids for organizing these spiritual trips to Agroha Dham, Vrindavan and Barsana. Dear participants, now it's time to acknowledge and appreciate your dedication. May I please call upon the dignitaries on the stage to felicitate the... Okay. सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं आग्रह करूंगी श्री जगदीश मित्तल जी का कि वो आएँ और अपनी कविता के थ्रू हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। नए सत्र के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि कुछ बातें उनके संबोधन में से काव्यात्मक दृष्टि से मुझे अच्छी लग रही थी। हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से आप लोगों ने यहाँ प्रवेश लिया है, और अभी यहाँ कहा जा रहा था कि कैसे कैसे अनुभव आएंगे। हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, क्या पता वही ज़िंदगी के मायने बन जाएंगे। ज़िंदगी में कुछ याद रहे ना रहे, ज़िंदगी में कुछ याद रहे ना रहे, ये लोग बहुत याद आएंगे, ये लोग बहुत याद आएंगे। आपका जीवन का कहीं गोल जो आप सोचते होंगे, ये पूरा करवाने में, करने में आपके साथ रहेंगे। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग। कॉलेज के प्राध्यापक चल रहे हैं, ट्रस्टी चल रहे हैं, मैनेजमेंट चल रही है।
पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप भी साथ दीजिए, मिलजुल करके आपका जीवन भी आगे बढ़ेगा और कॉलेज की प्रतिष्ठा भी आगे बढ़ेगी। हम सब के हाथ में एक यंत्र रहता है आजकल, जिसको हम पार्ट ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, जुबान के पास तो वक्त ही कहाँ। सब टच में बिजी हैं, सब टच में बिजी हैं, पर टच में कोई नहीं। तो आप अपने गुरुजनों के टच में रहिए, माता पिता के टच में रहिए और श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के टच में रहिए। आपका जीवन सदा यशस्वी रहेगा। उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, तुझसे ज़्यादा तेरा नाम बड़ा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हम सबको प्रोत्साहित किया, आशीर्वाद दिया। अगेन बैक टू मिस नीतू अग्रवाल। Thank you so much, ma'am. So let us begin with the certificate distribution. May I please call upon the dignitaries on the stage to felicitate the participants of the course for their remarkable achievement. I request all the participants to come up on the stage and have a photograph, please. अभी 2 मेडल लेके हमारी एक बच्ची आई है, क्या नाम उसका बताएंगे? एक बच्ची निशानेबाजी में 2 मेडल लेके आई। मैं बोल रहा हूँ इस कारण से, वो गीता से जुड़ी हुई है। मनु, बोलो जरा, आप सब बोले एक बार। मनु भाकर, उसको पिछली बार वो नहीं ले पाई थी, पिछला ओलंपिक जब हुआ वो नहीं ले पाई थी, डिप्रेशन में थी। तो गीता के माध्यम से उसकी माँ ने और उसके परिवार ने, और उसने एक्नॉलेज किया वहाँ भी और अभी भी सब जगह, कि जब मुझे श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन से मेरा फिर से कॉन्फिडेंस लौटा। रोज़ाना मैं उसके 2 श्लोक ज़रूर पढ़ती हूँ, उसके कारण से उसके मनो जो एक शक्ति है वो बढ़ी, कंसंट्रेशन बढ़ी, जिसके कारण से पहली बच्ची है हमारी जो ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई है। दोनों ब्रॉन्ज हैं और अगली बार वो गोल्ड लेके आएंगे। मैं आज आपको बता, जोरदार तालियां इन सब के लिए भी। और श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको टर्की, जो मुस्लिम राष्ट्र है, उसके यहाँ जब राष्ट्रपति आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं रात को गीता को पढ़ लेता हूँ, उससे कुछ न कुछ मुझे रास्ता मिलता है, मुझे शासन चलाने में मदद मिलती है, जीवन चलाने में। तो ऐसी श्रीमद् भगवत गीता को आप भी जीवन में उतारिए, यही आशा है।
मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी मैनेजमेंट के मेंबर्स का, हमारी हेड मैम का और सभी कोलीग्स का, और हमारे योग संस्थापक श्री सुनील गुप्ता सर का, जो योगा की और एवं भगवत गीता की क्लासेस डेली लेते हैं कॉलेज में। और भगवत गीता सिर्फ एक गीता नहीं है, एक जीवन जीने का ज्ञान उसमें छुपा हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ जितने भी हमारे जो बच्चे हैं जो आए हैं वो सभी अपना इनरोलमेंट करेंगे इसमें, और रेगुलर जो है गीता ज्ञान गीता क्लासेस जो हैं वो ले सकते हैं नीचे कॉलेज में मेम्स में। After so much deliberations, let's enjoy the delightful Bhangra performance by the Bhangra Knights Dance Society of Males. Subtle approach first.
हाँ भाई। ऑडिटोरियम में बैठे मेरे आदरणीय नंदकिशोर गर्ग अंकल जी और प्रिंसिपल, टीचर्स, सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। पूरी ऑडिटोरियम में आवाज आनी चाहिए, जय श्री राम। देखिए, मैं आपको यहाँ पर अंकल जी ने हमें पहले इनवाइट करा, आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों को देख के मुझे भी एक लगा कि मुझे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए जो आपके हो सकता है आपकी लाइफ में काम आए। देखिए, ये आपके लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट सबसे स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ, हमारा फ्यूचर, हमारा कहाँ, हम कहाँ जाएंगे, किस फील्ड में जाएंगे। फील्ड में भी करते करते ही बच्चे क्विट कर लेते हैं बीच में। तो ये जैसे आपकी एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे किचन होती है आपके उसमें आप जो आपकी मदर होती हैं उनको सब पता होता है भाई सब्जी बनाएंगी, मतलब कोई भी चीज़ बनने के लिए जब आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको ये नहीं पता होता, पानी भी लेने के लिए भी नल को सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये भी एक, ये जो इसकी किचन की तरह इसको समझो आप, भाई आपका नमक कहाँ रखा है। अभी तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। सबसे पहले आपको समझना है और आपको नेक्स्ट ईयर तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा अपना मोटिवेट करें और अपने आप को कंसंट्रेशन करने के लिए अगर हो सके तो आप अपनी लाइफ में मॉर्निंग में जब भी आपको समय मिले तो 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट लगते हैं, एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। उससे आपको मेडिटेशन इतना मिलेगा, मैं आपको यहाँ से कह के जा रहा हूँ, आप 1 साल बाद जब दोबारा मिलेंगे तो आप इस चीज़ को याद करिएगा। मेरी बेटी है, उनको भी यही बात, मैं अभी वो CA कर रही है और उसको मैं ये बात, उनको बहुत इससे बेनिफिट मिला है। और दूसरी, देखिए, अगर आप डायरी नोट करते हैं, कोई लिखते हैं, तो उसमें अपनी कमियां लिखिए उसमें आप कि मेरे अंदर, क्योंकि अच्छाई है तो सब बता देंगे। मैं एक को खड़ा किसी को कहूँगा तो बता देगा मेरे में ये, मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा, लेकिन कोई आदमी अपनी जल्दी से कमियां नहीं बताता है। तो आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप पॉइंट लिखिए डायरी के अंदर और उसको रीड आउट करिए आप। जब आप ये चीज़, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा 1 महीने तक, तो आपको अपने आप अपनी विज़न समझ में आ जाएगा, अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी कि आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है या किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका मतलब मेरे को जितना बोलना था मैंने बोला है, समझ में आए, आपको सबको समझ में आया है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, मेरे को ये भाई बोलने का वो मिला, मेरे को लगा कि ये बच्चों को बोलना चाहिए, लेकिन आप ये जरूर अपनाइएगा, आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा प्रभु से कामना है कि आपका जीवन खुशहाल रहे, आप खूब आगे तरक्की करें और माता पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके प्रेरणार्थक शब्दों के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, जैसे सर ने बोला, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत बच्चे ज़रूर करते होंगे और बहुत बच्चे अपने फ्रेंड्स को सिखाएं, एक दूसरे के माध्यम से ज़रूर हम ये सर ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ रॉकिंग परफॉर्मेंस बाय स्वराग, द म्यूजिक सोसाइटी ऑफ नेम्स। सो गेट रेडी टू बी स्वेप्ट अवे बाय द सोल स्टिरिंग patriotic melodies followed by a medley.
तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, मैं रोज़ रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, पीता ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून बहे।
full of positive vibes and energy. Last but not the least, the freshers will not just learn academics but also build a personality, an attitude, a character, and be a versatile all-rounder person. So be ready to capture some magical moments, make happy memories and friends who are going to surround you for a lifetime and happiness. With these lines, I request Dr. Praveen Kumar Gupta, Head of the Department of Law, to propose the vote of thanks. थैंक यू पूर्णिमा जी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। बचपन से जिस स्कूल में मैं पढ़ा, तो ये संस्कार के भाव लेकर के जीवन में आगे बढ़े। इसी भाव से आप सब महाराजा अग्रसेन संस्थान में आज आए हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल भी तिल रखने की भी जगह नहीं है। ये उत्साह बताता है कि महाराजा अग्रसेन आपके दिलों में है। महाराजा अग्रसेन संस्थान की जो ख्याति है वो आपके मन मस्तिष्क में है। आज इस अपने विभिन्न प्रोग्राम्स के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हैं। आप सबकी वजह से हम यहाँ हैं और ये प्रोग्राम है। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक चीज़ पढ़ते आए थे कि महापुरुषों के बारे में लिखना है, प्रस्ताव लिखना है। दिमाग में प्रश्न आता था कि महापुरुष बनते कैसे हैं। मैं देखता हूँ अक्सर हमारे इस संस्थान में कि महापुरुष हमारे सामने हैं और समय समय पर हमें उनका सानिध्य मिलता है। हमारे संस्थान के महापुरुष ही हैं जो आज हमारे सामने हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, जो इस संस्थान के फाउंडर चेयरमैन हैं, और आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी, जिनके बारे में जितना भी कहें उतना ही कम होगा। कि पूरा जीवन पिछले 40-50 साल से उन्होंने अपना परिवार छोड़ रखा है और समाज सेवा में लगे हुए हैं। इसी तरह से आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी, जो रिटायर्ड IAS हैं, श्री TR कक्कड़ जी, श्री TR गर्ग जी, सभी के सभी मैं ये कहूँगा कि महापुरुषों के दर्शन करने हैं तो अग्रसेन संस्थान में होते हैं। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। वोट ऑफ थैंक्स की श्रृंखला में यहाँ उपस्थित सभी डिपार्टमेंट हेड्स और सभी फैकल्टी मेंबर्स, उन सब का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस ओरिएंटेशन को सक्सेसफुल बनाया। सभी ने अपना योगदान दिया और सभी टेक्निकल टीम के सदस्य जिन्होंने पूरे मन से और तैयारी से, कंपेयरिंग टीम हो या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ की टीम हो या फिर इस ऑडिटोरियम को आज इस लायक बिल्कुल समय पर रेडी करना, ऑडिटोरियम की टीम है। हमारे सामने आदरणीय श्री तेवतिया जी बैठे हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सब इस क्लीनलीनेस को देखते हैं। और एक चीज़ मैं नहीं छोड़ना चाहता कि जो कैमरामैन टीम है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सब लोगों के फ़ोटोग्राफ और वीडियो लेते हैं, लेकिन वो कभी फ़ोटोग्राफ वीडियो में नहीं आते। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी विद्यार्थियों का पुनः धन्यवाद है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अपने संस्कारों को आप बनाए रखिए, क्योंकि संस्कार यदि रहेंगे, चरित्र यदि रहेगा, तो आप जितना चाहें उतना ऊंचा उठ सकते हैं।
छोटा सा उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं जिस विद्यालय से स्कूल से पढ़ा, वहाँ के संस्कारों का ये फल है कि मैं एक संस्कारित संस्थान में ही आज काम कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के आप सब ज़्यादातर लोग दिल्ली में रहने वाले दृष्टि IAS कोचिंग को सब जानते होंगे। हाथ उठाइए कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग हैं। दृष्टि IAS के जो ऑनर हैं विकास दिव्य कीर्ति, वो उसी स्कूल में है जिससे मैं पास आउट हूँ। तो मुझे फक्र होता है कि हमारा स्कूल जो कि संस्कारों से स्कूल को चलाता था, उन संस्कारों का ही प्रतिफल है। मेरे ही बैचमेट, हम कॉमर्स से पढ़े, वो साइंस से पढ़े, मेरे ही बैचमेट उन्हीं के बड़े भाई विकास दिव्य कीर्ति जी के विवेक प्रियदर्शी, आज वो हमारे जो साथी थे वो आज CBI में DIG हैं। तो मुझे कहते हुए इसलिए फक्र हो रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कार जो है वो सबसे ज़रूरी है। आचार्य जी ने आज हवन कराया, तो शुरू से आखिर तक जो भी वेद की ऋचाएँ पढ़ी, तो वो सिर्फ एक सेरेमनी नहीं होती है। काफ़ी लोग वेट करते रहते हैं कि जल्द से जल्द वो समाप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारा आध्यात्मिक अनुष्ठान है उसमें मन से बैठें और तभी हमें संस्कार मिलेंगे। संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभागार में उपस्थित आए हुए सभी गणमान्य बुद्धिजीवियों और फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स भी कुछ संख्या में आए हैं, हमारे NCC कैडेट्स, सभी विद्यार्थियों का बार बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी का आभार इतने भावपूर्ण तरीके से व्यक्त करने के लिए आपका भी आभार सर। Let us conclude today's event by national anthem. So I humbly request all to stand up at their respective places for the national anthem.